students, myself Dr. Subhendu Kumar Meher, and we will start the topic of the integration, that is integration by parts. Okay, so actually this is for second year 12th class. Is it integration by parts, or I can say integration over product? Is it? So our topic is integration by parts. Integration by parts, or we can say integration over product. Integration over product. So जैसे कि हम जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है. एडिशन, सपोज वी हैव टू फंक्शन fx plus gx and integration over it, then integration is obviously distributed. Integration of fx plus integration of gx. Is it? In case of subtraction also it is distributed. We have already gone through it, but in case of multiplication it is not so. In case of multiplication it contains a formula. Okay, जैसे कि डेरिवेटिव में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोडक्ट डेरिवेटिव इट कंटेन्स अ फार्मूला f into g dash is equal to f dash into g dash. नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता. कैसा होता है? f dash into g plus f into g dash. So similarly in case of integration, if it is fx into gx and integration over it, then the formula is, ठीक से याद रखना, formula is first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx. देखो ठीक से, इंटीग्रेशन ओवर fx into gx इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. तो fx को हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, gx को हम सेकेंड फंक्शन बोलेंगे. Is it? So it is first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx. तो दो बार dx हम क्यों लिखे? Because this dx is for this integral symbol and this dx is for this integral symbol. Okay? लिख लो ठीक से, फॉर्मूला ठीक से लिख लो. ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. इंटीग्रेशन ओवर x इंटू cos x. तो फिर फर्स्ट क्या लिखा है? x लिखा है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड whole dx. Is it? Okay. So this is equal to x into cos x का इंटीग्रेशन sin x है माइनस होल इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव अगेन sin x into dx. Is it? ठीक है, तो अभी x sin x इंटू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स, दैट इज ओनली साइन एक्स dx इज इक्वल टू x sin x माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x प्लस c. सो द फाइनल आंसर इज दिस इज इक्वल टू x sin x
प्लस cos x प्लस c। ओके, ठीक है। ठीक है, अभी देखो सपोज वी आर आस्क्ड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x होल dx, is it? So now it is first function in first place this x square is there, so first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx is equal to x square into e to the power x minus whole integral x square का डेरिवेटिव 2x और e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x into dx is equal to x square into e to the power x minus 2 आगे आ गया। ओके, 2 को हम आगे ले आए, इंटीग्रल x into e to the power x into dx। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू this is equal to x square into e to the power x minus 2 into bracket start again by parts rule, first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx। देखो ये फॉर्मूला को ठीक से याद कर लो। ओके, मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मैं x लिख रहा हूँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इस लाइन को बराबर याद कर लो। ओके, इज इट? ठीक है, सो दिस इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू dx। इज इट? अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, दिस इक्वल टू x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू dx is equal to x square into e to the power x minus 2x into e to the power x plus 2 integration of e to the power x is again e to the power x plus c। okay, so this is the way। ठीक है, लेकिन हम जैसे सोच रहे हैं वैसा हर वक्त नहीं है। दिस इज नॉट लाइक as we are thinking always। ठीक है, तो अभी क्या है, हम इससे पहले जो किए थे इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, तो x आगे था इसीलिए x को हम फर्स्ट फंक्शन करके चूज किए। यहाँ पर x स्क्वायर आगे है इसीलिए x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन करके चूज किए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर हमको क्वेश्चन आएगा, इसको कहते हैं, इसको ये तो कर चुके हैं, अभी आंसर भी आ चुका है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी e टू द पावर x को हम आगे ले आएंगे और x स्क्वायर को पीछे ले जाएंगे, तब e टू द पावर x का फर्स्ट फंक्शन होगा क्या? if this happens, if e to the power x is placed in the first position and x square is placed in the second position, then is it so that e to the power x is the first function and x square is the second position? No, because if this is the first position, let us choose if this is the first function, so first into integration of second, that is x square dx minus whole integral derivative of e to the power x into integration of second whole dx। अगर इस तरह से हम आगे जाएंगे, ये जो है x का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस होल इंटीग्रल e टू द x का डेरिवेटिव e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 into dx। अभी x स्क्वायर और बड़ा हो गया,
So this is equal to e to the power x into x cube by 3 minus 1 by 3 integral e to the power x into x cube into dx। अभी हम अगर इसको फिर बाय पार्ट्स रूल में यूज करेंगे यहाँ e to the power x into x cube by 3 minus 1 by 3 first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx। अगर इस तरह से हम करेंगे तो आगे तो जाके ये और बड़ा हो जाएगा। अभी x क्यूब का इंटीग्रेशन x4 by 4 आ जाएगा, फिर x4 by 4 फिर e to the x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आगे जाके ऑन एंडिंग हो जाएगा, ऑन एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, ऑन एंडिंग प्रोसेस। तो कभी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहां से हम फील किए, हम रियलाइज किए कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा, इसका कोई रूल होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x को हम जब किए तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। ओके, वी गॉट ए ब्यूटीफुल आंसर। बट व्हेन वी इंटरचेंज द पोजीशन, x स्क्वायर को पीछे ले गए, ई टू द x को आगे ले आए, तो अभी आ गया ऑन एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन पहले आना चाहिए, कौन सा फंक्शन पीछे आना चाहिए, और आई कैन से व्हिच फंक्शन शुड बी द फर्स्ट एंड व्हिच शुड बी द सेकंड, दैट शुड बी ए रूल। सो ये रूल क्या है, वो रूल को बोलते हैं हम आइलेट फार्मूला और आइलेट रूल, ILATE। हेडिंग दे दो, ओके, कीप हेडिंग हाउ टू चूज द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन, हाउ टू चूज द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन, how to choose the first function and the second function, and the rule is that ILATE। किसी किसी बुक में इटाली भी बोलते हैं, लेकिन किसी दूसरे फॉर्मूला को फॉलो ही मत करना, यही सबसे अच्छा तरीका है आइलेट। तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो पीछे आएगा वो सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आई फॉर इनवर्स, ऑल इनवर्स फंक्शन आर इंक्लूडेड हियर, इनवर्स फंक्शन जैसे कि तुम्हारा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे। एल फॉर लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन जैसे कि log x, log x स्क्वायर, log x क्यूब, इस तरह से। A फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे कि एनी कांस्टेंट x, x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह से। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ आ जाएगा sin x, cos x, इस तरह से। एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ आ जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, इस तरह से सब, ओके, e टू द पावर जो भी है, ठीक है। ओके, लिख दिया सब, यहाँ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यहाँ log, log x स्क्वायर, log x क्यूब, कांस्टेंट x, x स्क्वायर, x क्यूब, sin x, cos x, एंड वहाँ e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो अभी अगर हम क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x, integration of x into ln x. So x comes under algebraic and ln x is logarithmic function,
ILATE, L पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो दिस शुड बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस शुड बी द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड दिस शुड बी सेकंड, सो इट शुड बी लाइक ln x into x। अगर इस तरह से करोगे तो नहीं होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ln x का इंटीग्रेशन तुम नहीं जानते, फर्स्ट ln x का डेरिवेटिव 1/x है, ln x का इंटीग्रेशन तुम नहीं जानते अभी तक, तो इसीलिए इसको सेकंड फंक्शन ले भी नहीं सकते हम। और आइलेट फार्मूला के हिसाब से भी ये फर्स्ट फंक्शन हो रहा है और ये सेकंड फंक्शन हो रहा है, ILATE, पहले L आ रहा है फिर A आ रहा है, ओके। तो इट शुड बी इंटीग्रल ln x into x into dx is equal to first into integration of second minus whole integral derivative of first into integration of second whole dx is equal to ln x into x का इंटीग्रेशन x square by 2 minus whole integral ln x का डेरिवेटिव 1/x, x का इंटीग्रेशन x square by 2 into dx is equal to इसको पहले लिखते हैं, अच्छा दिखेगा, x square by 2 into ln x minus 1/2, ये 1/2 को हम आगे ले आए और x और x का कैंसिल हो गया, फिर x रह गया, is equal to x square by 2 ln x minus 1/2 into x का इंटीग्रेशन x square by 2 plus c, so final answer is x square by 2 ln x minus x square by 4 plus c। ठीक है, खत्म। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको बोल रहा था कि ln x का इंटीग्रेशन तुम नहीं जानते, तो ln x का इंटीग्रेशन हम अभी ड्रा करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x into 1 of dx, तो ln x लॉगरिथम में आएगा और 1 कांस्टेंट है तो अलजेब्रिक में आएगा, ILATE, L पहले आ रहा है, A पीछे आ रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx is equal to ln x into 1 का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रल ln x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x into dx, x कैंसिल, is equal to ln x into x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x into ln x अच्छा दिखेगा, माइनस इंटीग्रल 1 dx is equal to x ln x minus x plus c, ओके। ठीक है, अभी तुम करो, अभी तुम्हारे लिए वो क्या है, क्वेश्चन है ln x, पहले सिंपल एक सिंपल दे रहा हूं, x इंटू साइन एक्स का करो, फिर करना x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले ये देख लो, फिर ये करके दिखाना मुझे, ओके।